Hello students, we are here to continue our topic interrelationships of hemichordata, urochordata and cephalochordata and their relations with other deuterostomes. So let's begin. Now we had first compared generally all the three subphyla, then we had compared their habit and habitat and their alimentary canal and associated glands. Now we are coming to the comparison of pharynx. Pharynx is a very important organ in these animals because they are mainly filter feeders, and the filter feeding, it actually goes on in the pharynx. So let's see how we're going to compare the pharynx under which points. The first point is position of pharynx. In Bananoglossus, it is present inside anterior 1/3 part of branchiogenital region of trunk. In Herdmania, it occupies the whole body, the major part of the body cavity. And in Branchiostoma, it occupies nearly 1/2 anterior part of the body. If you have done the structure of all these three animals, Balanoglossus, Herdmania and Branchiostoma, then in the structure part, this part is covered, that pharynx is present where and it is covering how much part of the body. Then comes the shape. In Balanoglossus, pharynx is elongated. In Herdmania, it is large sac-like, and in Branchiostoma, it is large, spacious, cylindrical and laterally compressed chamber. Because the body of Branchiostoma is laterally compressed, so obviously the organ inside will also be laterally compressed. Third, attachment. It is attached with the body wall. In Balanoglossus, it is attached with the body wall by dorsal and ventral mesenteries. There is no atrium in this animal, so it is connected on both sides, dorsal part and the ventral part. In Herdmania, it is attached only mid-ventrally to mental. मिड वेंट्रली क्यों अटैच्ड है ये? क्योंकि आपको मालूम है इसमें एट्रियल साइफन होता है, ब्रैंकियल साइफन होता है और एट्रियल साइफन होता है. तो जो एट्रियल साइफन है, दोनों ही साइफन जो होते हैं वो ऊपर की तरफ डायरेक्टेड होते हैं. तो जो ऊपर की तरफ अगर एट्रियल साइफन अटैच्ड है तो पानी वहीं से निकलेगा. तो जो फेरिंग्स है वो वेंट्रली अटैच्ड होती है बॉडी से, और उसके लैटरल और डोर्सल साइड पर कैविटी बनी हुई होती है. तो इसलिए ये मिड वेंट्रली मेंटल से जुड़ी हुई होती है. फिर ब्रैंकियोस्टोमा में इट इज अटैच्ड डोर्सली टू बॉडी वॉल. इसमें एट्रियम, जो एट्रियल पोर होता है वो पोस्टीरो वेंट्रल पोजीशन पे होता है, इसलिए जो कैविटी है वो लैटरल और पोस्टीरियर साइड पे होती है. तो इसलिए अटैचमेंट जो होगा वो डोर्सल साइड पे होगा. फोर्थ पॉइंट, एट्रियम बैलानोग्लोसस में एब्सेंट है. In Herdmania, pharynx surrounded dorsolaterally by the atrium or peribranchial cavity, which opens to the outside through atrial aperture. ये जो पहला पॉइंट में मैंने समझाया है आपको, अटैचमेंट और फिर रिलीज ऑफ वाटर, तो वो ही चीज ये इसमें रिपीट हो रही है. ब्रैंकियोस्टोमा में द पेरीब्रैंकियल कैविटी और एट्रियम सराउंड्स pharynx ऑन ऑल साइड्स एक्सेप्ट द डोर्सल, क्योंकि डोर्सल से वो अटैच्ड है बॉडी से. इट्स एट्रियोपोर लाइज पोस्टीरियरली. Number 5, relation with mouth. In Balanoglossus, large mid-ventral mouth leads into a short buccal cavity, which in turn leads into pharynx. पहले buccal cavity होती है और उसके buccal cavity के ठीक बाद pharynx present होती है. Herdmania में small 4-rayed terminal mouth or branchial siphon, its opening into pharynx is guarded by branched branchial tentacles. ये जो टेंटिकल्स हैं, जो भी पानी अंदर जा रहा होता है, ये आपस में क्रॉस क्रॉस होके एक जालीनुमा स्ट्रक्चर बना लेते हैं और फिर पानी छन के अंदर जाता है. जो मोटे पार्टिकल्स हैं वो बाहर रह जाते हैं, जो उसके यूज़ के नहीं होते हैं एनिमल के, और जो छोटे माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं
माइक्रोफेगस होते हैं ये एनिमल्स, तो जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं वो अंदर चले जाते हैं पानी के साथ, जो कि फेरिंग्स में ट्रैप हो जाते हैं, और ट्रैप होने के बाद ये फेरिंग्स के पीछे एलिमेंट्री ट्रैक्ट में पहुंचा दिए जाते हैं। ब्रैंकियोस्टोमा में large oval mouth bordered by oral hood with buccal cirri and guarded by velar tentacles leads into pharynx through a circular aperture, the enterostome. Sixth point, pharyngeal cavity. Pharyngeal cavity hemichordata यानी balloon glosses में simple and uniformly lined by cilia and mucous cells. सीधी सादी सी कैविटी होती है ये, जबकि हर्डमानिया में इसकी इंटरनल वॉल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है और इसमें लॉन्जिट्यूडनली फोल्डेड ट्रैक्ट्स होते हैं, इसमें लॉन्जिट्यूडनल ट्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें सिलिया लगी हुई होती है और ग्लैंड्स लगे होते हैं जिससे म्यूकस सिक्रीशन होता है, जिससे फूड उनमें ट्रैप हो जाता है। ब्रैंकियोस्टोमा cavity is very much complicated with definite ciliary and glandular tracts. तो ये simple होता है pharyngeal cavity simple in balanoglossus, a little complicated in herdmania and very complicated in brachiostoma. 7th point है division. जो pharyngeal cavity है वो parts में divided होती है, मतलब आगे का part, पीछे का part। तो फेरिंग्स एक्चुअली जहाँ स्टार्ट होती है उससे पहले अगर कोई छोटा सा चेम्बर प्रेजेंट होता है तो वो कहलाता है प्री ब्रैंकियल चेम्बर, और फिर ब्रैंकियल चेम्बर जो पूरा मेन चेम्बर होता है वो कहलाता है ब्रैंकियल चेम्बर। तो बैलानोग्लॉसस में, इन बैलानोग्लॉसस 2 lateral parabranchial ridges incompletely divide pharynx into a dorsal respiratory or branchial chamber and a ventral digestive chamber. तो ये तो डिवीजन हुआ डोर्सल और वेंट्रल। बाकी दोनों एनिमल्स में ये एंटीरियर और पोस्टीरियर होता है। तो इन हर्डमानिया डिफरेंशिएटेड इनटू अ स्मॉल एंटीरियर प्री ब्रैंकियल जोन एंड मच लार्जर पोस्टीरियर ब्रैंकियल सैक बाय 2 पेयर्स ऑफ सिलिएटेड पेरिफेरेंजियल बैंड्स। पेरिफेरेंजियल बैंड जो होता है ये डोर्सल साइड से लेकर वेंट्रल साइड तक रन करते हैं। डोर्सल साइड पे ये जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, अगर ऊपर डोर्सल लेमिना प्रेजेंट है तो उससे कंटिन्यूस हो जाते हैं, और नीचे जो एंडोस्टाइल प्रेजेंट होता है उससे कंटिन्यूस हो जाते हैं। इन ब्रैंकियोस्टोमा इट इज डिवाइडेड इनटू pharynx is divided into a small anterior prebranchial zone and the pharynx proper by a pair of ciliated peripharyngeal bands. सेम एक तरह से सिमिलर है दोनों का, हर्डमानिया और ब्रैंकियोस्टोमा का। 8th point, gill slits. Branchial portion of pharynx is perforated by numerous U-shaped gill slits leading into branchial sacs. Each sac leads to exterior by a single gill pore. तो ये है बैलानोग्लॉसस में कि इसमें U-shaped gill slits होती हैं और they are leading into branchial sacs, और हर एक sac जो है ये बाहर की तरफ एक गिल पोर से खुलता है। In herdmania, branchial sac of pharynx is perforated by about 200,000 मतलब 2 lakh elongated gill slits और stigmata leading into atrial cavity. और ब्रैंकियोस्टोमा में lateral walls of pharynx are perforated by 150 to 200 pairs of vertically oblique narrow gill slits opening into the atrial cavity. तो गिल स्लिट्स जो हैं वो बहुत कम होती हैं बैलानोग्लॉसस में और बहुत ज़्यादा होती हैं हर्डमानिया में, और फिर ब्रैंकियोस्टोमा में वापस ये कम हो जाती है। 9th point, एंडोस्टाइल. एंडोस्टाइल बैलानोग्लॉसस में एब्सेंट है। इन हर्डमानिया एंडोस्टाइल इज अ शैलो लॉन्जिट्यूडिनल मिड वेंट्रल ग्रूव ऑन फ्लोर ऑफ ब्रैंकियल सैक. इट कंसिस्ट ऑफ 5 सिलियरी ट्रैक्ट्स ऑल्टरनेटिंग विद 4 ग्लैंडुलर ट्रैक्ट्स। ये इस वाली स्लाइड के बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें मैंने डायग्राम्स इंसर्ट किए हैं, तो आप ये उसमें देख सकते हैं, और उसमें क्लियर दे रखा है जो एंडोस्टाइल का टीएस है, और उसमें ये आप 5 सिलियरी ट्रैक्ट्स ऑल्टरनेटिंग विद 4 ग्लैंडुलर ट्रैक्ट्स आपको क्लियर नजर आएंगे। इन ब्रैंकियोस्टोमा hypobranchial tract or an endostyle similar to that of herdmania is present. It is made of ciliary and alternating mucus secreting cells. तो इन दोनों का करीब करीब स्ट्रक्चर सेम होता है और बैलानोग्लॉसस में एब्सेंट होती है। डोर्सल लेमिना अगेन बैलानोग्लॉसस में एब्सेंट है।
In Herdmania, ciliated hyperpharyngeal band or dorsal lamina hangs mid-dorsally bearing tongue-like languids into the branchial sac. और ये जो languids हैं ये कर्व होके एक कैनाल जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसमें से फूड लेडन म्यूकस जो होता है, म्यूकस की जो एक तरह से स्ट्रिंग बनती है वो इन लैंग्विड्स के थ्रू फेरिंक्स से इसोफेगस में पास हो जाती है. In branchiostoma, a prominent ciliated epipharyngeal or hyperpharyngeal groove is present mid-dorsally opposite endostyle. Languids are absent. तो इसमें भी ये एंडोस्टाइल बनता है और ये एंडोस्टाइल के ऑपोजिट ये जो एपीफेरेंजियल या हाइपरफेरेंजियल ग्रूव बनता है और इनमें लेकिन लैंग्विड्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं. तो इस ग्रूव में ही जो म्यूकस लेडन थ्रेड है वो पास होता है. 11 पॉइंट पेरिफेरेंजियल बैंड्स. इसमें बैलोनोग्लॉसस में पेरिफेरेंजियल बैंड्स एब्सेंट हैं और हर्डमानिया में द डोर्सल लैमिना एंड एंडोस्टाइल आर कनेक्टेड ऑन ईदर लैटरल साइड बाय पेयर ऑफ सिलिएटेड पेरिफेरेंजियल बैंड्स. जैसे इस पॉइंट पे मैंने आपको बताया था जो ये पेरिफेरेंजियल कैविटी है इसमें मैंने बताया था आपको कि जो पेरिफेरेंजियल बैंड्स होते हैं वो जो फेरिंग्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, प्री ब्रैंकियल और ब्रैंकियल साइड में, ये जो बैंड्स हैं ये ऊपर की तरफ डोर्सल साइड कंटिन्यूस हो जाते हैं डोर्सल लैमिना से और नीचे की तरफ ये कंटिन्यूस होते हैं एंडोस्टाइल से. तो ये वही चीज आ रही है इसमें पेरिफेरेंजियल बैंड्स का ये समझा रहे हैं. फिर ब्रैंकियोस्टोमा में द एपिफेरेंजियल ग्रूव एंड एंडोस्टाइल are connected anteriorly by pair of lateral peripharyngeal ciliated bands. ठीक है. Last point है relation with intestine. In balanoglossus, pharynx opens directly into intestine. In Herdmania, it leads into intestine via esophagus and stomach. And in branchiostoma, it opens into intestine via short esophagus and midgut. So this is all you have to know about the pharynx. And again I shall tell you, मेरा काम है केवल आपको गाइड करना. ये सारे जो भी पॉइंट्स हैं इनको आपको डायग्राम वाइज जो कि आपकी बुक्स में बहुत अच्छे दे रखे हैं. अभी इस लेक्चर में मेरा लिमिटेशन है कि मैं डायग्राम के साथ आपको नहीं समझा पा रही हूँ, लेकिन आपको ये सारे डायग्राम्स के साथ इनको पॉइंट्स को रिलेट करके समझना है. ये देखिए, ये मैंने बैलोनोग्लॉसस का फेरिंग्स का डायग्राम डाला है. ये आपको दिखाई दे रही है इसमें गिल स्लिट्स, और जो गिल स्लिट्स हैं उनके बाद फिर बाहर फिर आपको दिख रहा है ब्रैंकियल सैक, और उसमें फिर ब्रैंकियल सैक बाहर खुल रहा है थ्रू गिल पोर्स. तो ये है बैलोनोग्लॉसस. नेक्स्ट जो है इसमें ये आपको हर्डमानिया का फेरिंग्स दिख रहा है. इसमें ये देखिए ये सारे गिल स्लिट्स हैं. आपने उसमें पढ़ा है टेबल में कि इसमें 5 लाख गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये है गिल स्लिट्स, और ये जो ओपनिंग्स हैं ये कहलाती हैं स्टिग्मेटा, और ये स्टिग्मेटा इसको डिटेल फॉर्म में दे रखा है. और ये जो डोर्सल लैमिना से लैंग्विड्स लगे होते हैं वो होते हैं, ये लैंग्विड्स का ये कंटिन्यूस स्ट्रक्चर है, और ये एक को अच्छे से डिस्क्राइब करके इसके पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर बताया हुआ है. और ये जो फिगर 16 आपको दिखाई दे रहा है इसमें ये हर्डमानिया का एंडोस्टाइल का टीएस है. मतलब ये लैटरल वॉल्स हैं, दोनों साइड लैटरल वॉल्स हैं. ये जो लिख रखा है इसमें मीडियन लॉन्गिट्यूडनल, ये लैटरल वॉल्स तो इसमें कहीं पे भी नहीं रखा. ये लैटरल वॉल्स हैं दोनों साइड, और बीच में ये जो लॉ जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है सिलिया, और ये जो सिलिया हैं वो सिलिएटेड एपिथेलियम में से निकल रही हैं. जो इंटरनल लाइनिंग होती है फेरिंग्स की वो पूरी सिलिएटेड एपिथेलियम की होती है. और इसके वेंट्रल और सेंट्रल पार्ट में से ये बड़ी बड़ी सिलिया निकल रही हैं. तो ये कहलाती है मीडियन लॉन्जिट्यूडनल सिलिया. और इन सिलिया के बीटिंग से ही पानी जो अंदर आता है वो वॉल्स के ऊपर
फ्लो करके और फिर बाहर निकल जाता है, और बाहर निकल के ये एट्रियम से फिर एट्रियोपोर के थ्रू बॉडी के बाहर निकल जाता है। ठीक है, और ये जो फेरिंग्स है ये लीड करती है इनटू इसोफेगस। तो ये इसोफेगस का स्ट्रक्चर मैंने इसलिए दिया है क्योंकि कनेक्शन आपने पढ़ा है ना, कनेक्शन विद जो फूड ट्रैक्ट, तो उसमें ये फेरिंग्स के बाद फिर ये जैसे ये जो पार्ट है ये इसोफेगस है, तो फेरिंग्स विल लीड इनटू दिस, और फिर ये इसोफेगस जो है ये स्टमक में लीड करता है। तो इस तरह से जो फूड कॉर्ड होता है वो फेरिंग्स से जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें एंटर हो जाता है। ये ब्रांकियोस्टोमा का फेरिंग्स का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी गिलवार्ड्स इन टीएस। पहले तो नीचे ये सेकंड वाले डायग्राम आप देखिए, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी गिलवार्ड्स एंड गिल स्लिट्स। तो ये तो बड़े बड़े जो हैं, जो कंप्लीट ऊपर से नीचे तक कवर हो रहे हैं, ये तो प्राइमरी स्केलेटल रॉड्स, गिल रॉड्स हैं, और फिर इसमें से ये टंग जैसा स्ट्रक्चर बीच में निकलता है इनके, ये स्टार्ट होता है और ग्रो होता जाता है, और ग्रो होने के बाद जब ये पूरा नीचे तक आ जाता है तो ये बन जाता है सेकेंडरी गिल रॉड, और इसमें से फिर बीच में जो स्पेसेस होती हैं ये बन जाती हैं गिल स्लिट्स। गिल रॉड्स के बीच में जो स्पेसेस हैं ये बन जाती हैं गिल स्लिट्स, और इसमें जैसा आपने पढ़ा है 150 से 200 गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, और इसमें से पानी फेरिंग्स से बाहर निकल के एट्रियम में इकट्ठा हो जाता है। तो ये सेकंड डायग्राम में तो आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, और इसके बाद ये डिटेल स्ट्रक्चर है ऊपर। तो इसकी ये सारी जो टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, सिलिया हैं, फेरेंजियल एपिथेलियम, ब्लड वेसल, लैटरल सिलिया, गिल स्लिट, गिल स्लिट, ये देखिए दो जो रॉड्स हैं, प्राइमरी गिलवार और सेकेंडरी गिलवार के बीच में जो स्पेस है उसको ये दो एरो एक इस तरफ डायरेक्ट करके, और ये बता रखा है ये स्पैन है गिल स्लिट का इन दोनों गिलवार के बीच में। तो इस तरह से ये जो फिर नीचे देखिए ये सिनेप्टिकुलम पे जो बाहर वाला एपिथेलियम है वो एट्रियल एपिथेलियम है, क्योंकि बाहर की जो कैविटी है वो एट्रियम है, और एट्रियल जो वहाँ उसमें जो सिलिया, इस कैविटी में जो सिलिया प्रेजेंट है वो एट्रियल सिलिया कहलाती है, और जो गिल रॉड्स हैं उनके बेस पे ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं जो इनको कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई करती हैं। ब्लड सप्लाई जो होता है फेरिंग्स में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहीं पे ब्लड का एरेशन होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पानी के साथ बाहर चली जाती है, और पानी में घुला हुआ जो ऑक्सीजन है वो ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इस ब्लड में। नीचे जो तीसरा डायग्राम है ब्रांकियोस्टोमा का, ये एंडोस्टाइल है टीएस में, और इसमें क्लियर आपको ग्लैंडुलर और सिलिएटेड बैंड्स नजर आ रहे हैं ऑल्टरनेटिंग। जो 5 तो इसमें सिलिएटेड बैंड्स हैं, और उनके बीच में ऑल्टरनेटिंग 4 ग्लैंडुलर बैंड्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब अपन आते हैं कंपैरिजन ऑफ फूड एंड फीडिंग। फर्स्ट पॉइंट, फूड ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाते हैं, ये तीनों ही जो एनिमल्स हैं, बैलेनोग्लोसस, हर्डमानिया, ब्रांकियोस्टोमा। जो बैलेनोग्लोसस है ये इनका फूड है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ऑर्गेनिक पार्टिकल्स इन सैंड एंड वाटर। ये सैंड को भी खाता है, तो जो ऑर्गेनिक पार्टिकल सैंड में होता है उनके लिए ये सैंड को इंजेस्ट करता है, और फिर वो उन पे फीड करता है। हर्डमानिया में जो प्लैंक्टोनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इसका फूड है। जैसे मैंने बताया था ब्रैंकियल साइफन में टेंटिकल्स होते हैं, वो बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं, जो बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको तो बाहर ही छोड़ देते हैं, और पानी के साथ केवल बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर एंटर हो पाते हैं। तो ये प्लैंक्टोनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं यही फिर फेरिंग्स में जाके ये फूड कॉर्ड में ट्रैप होते हैं। इसी तरह से ब्रांकियोस्टोमा में भी जो फीडिंग मटेरियल है वो है प्लैंक्टोनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड पॉइंट है फीडिंग हैबिट। ये तीनों ही माइक्रोफैगस है। फैगस मीन्स ईटिंग, माइक्रो मीन्स स्मॉल। स्मॉल पार्टिकल्स को इंजेस्ट करना इज नोन एज माइक्रोफैगस। तो तीनों ही माइक्रोफैगस है। थर्ड मोड ऑफ फीडिंग, इसमें बैलेनोग्लोसस, इन बैलेनोग्लोसस सिलियरी फिल्टर फीडिंग एज वेल एज swallowing मड। ठीक है, ये पहले समझा चुकी हूँ मैं। इसमें हर्डमानिया और ब्रांकियोस्टोमा दोनों में सिलियरी फिल्टर फीडिंग पाई जाती है। फोर्थ, ट्रैपिंग और कलेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स।
इन belanoglossals ये जो ट्रैपिंग है ये एक्सटर्नल है. Minute food particles are trapped outside body by mucus secreted by proboscis. इसमें proboscis होती है, वो mucus secrete करता है और इसमें food trap हो जाता है. In Hermania, the trapping is internal. Food particles collected inside pharynx by mucus secreted by glandular tracts of endostyle. In branchiostoma, again it's internal and by sticky secretion of mucous cells of endostyle on the floor of pharynx. Fifth point is water current production. वाटर करंट प्रोडक्शन मैंने आपको बताया है पहले कि जो सिलिया की बीटिंग होती है उससे वाटर करंट फ्लो होता है. सिलिया की बीटिंग इस तरह से होती है कि जो फेरिंग्स में भरा हुआ पानी है, जो हमेशा भरा हुआ, फेरिंग्स इज ऑलवेज फिल्ड विद वाटर, तो इफ इट इज प्रेजेंट देयर एंड द एनिमल वांट्स टू फीड, it will beat its cilia so that the water filled in the pharynx is expelled out, and if it is expelled out, automatically the only opening from where the water can enter is mouth. तो वहाँ से फिर माउथ से पानी अंदर की तरफ आता है, और माउथ से पानी अंदर की तरफ आता है तो उसके जो सारे एनिमल्स में जो मैकेनिज्म्स हैं उसमें जो अनवांटेड मटेरियल है वो बाहर ही रह जाता है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं पानी के साथ वो अंदर एंटर हो जाते हैं. सो इन belanoglossals, in fifth point, by lashing of lateral cilia on gill slits of pharynx, constant feeding water current enters through mouth. In Herdmania, beating of lateral cilia lining stigmata drives a continuous water current into mouth. In Branchiostoma, wheel organ on roof of oral hood causes a constant flow of sea water through mouth. Sixth point is course of feeding current. In belanoglossals, the course is from mouth to buccal cavity to pharynx to pharyngeal gill slits to branchial sacs and then to exterior gill pores. In Herdmania, from mouth to pharynx to stigmata to atrium to atriopore and exterior. The better way of explaining this will be from mouth to pharynx, and from there through stigmata to atrium, and from atrium through atriopore to the exterior. And same in branchiostoma, it is the same as in Herdmania. Seventh point, regulation of feeding current, rejection of larger food particles. In belanoglossals, chemoreceptor cells of preoral ciliary organ at the base of proboscis test the quality of food and water entering mouth. Muscular ventral part of collar regulates feeding current by closing mouth under nervous control. In Herdmania, branchial tentacles act as chemoreceptors and also as strainers to prevent entry of impurities and larger food particles. Ciliary beating is under nervous control. In branchiostoma, buccal cirri and velar tentacles serve as sieves as well as chemoreceptors preventing entry of large food and sand particles. Ciliary beating is under nervous control. तो ciliary beating जो है वो आपने तीनों में देखा, it is under nervous control. जो नर्व्स होती हैं उनके ही इशारों पे ये सिलिया बीट करती हैं. और मेन बात ये है कि जो टेंटिकल्स हैं, ब्रैंकियल टेंटिकल्स इन हर्डमानिया, और जो ब्रैंकियोस्टोमा में बक्कल सिराई और व्हीलर टेंटिकल्स हैं, ये सारे पानी को छान तो रही हैं, एक छलनी का जैसे तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन ये कीमो रिसेप्टर्स भी हैं. तो जो पानी एंटर होता है उसको ये टेस्ट करते रहते हैं, और फिर जो वांटेड करंट है वो ही अंदर जाता है, अगर अनवांटेड है तो वो रिजेक्ट हो जाता है या वो बंद हो जाता है. 8th point, formation of passage of food string. In belanoglossals, endostyle and epipharyngeal groove are absent. Food particles move backwards by ciliary action via ventral digestive part of pharynx into esophagus. Then in Herdmania, mucus entangled food particles from ventral endostyle are shifted dorsally along pharyngeal wall to dorsal lamina and driven backwards into esophagus by ciliary action. In branchiostoma, sheets of food particles trapped by mucus secreted by endostyle move dorsally to epipharyngeal groove and passed as a narrow food cord into esophagus by ciliary action. 9th point, reverse current. In belanoglossals, it's not known, it's not seen by any scientist specifically, and in Herdmania, unwanted current and larger particles are thrown out of mouth by producing a strong reverse current by muscular contraction.
And in branchiostoma also periodically the atriopore closes, so the water flow backwards stops because atriopore is closed, and atrial flood suddenly contracts, regurgitating water current and large particles forcefully through mouth. When the velar tentacles and buccal serae, they are sieving the larger particles. Some of these particles, they remain entangled there. They are not removed. And for removing this, the reverse current, after the atriopore is closed, the water, it fills in the pharynx, and then there's a reverse flow through the mouth, and all the particles are taken along with that forceful current. Last point is egestion. In venolosis, undigested food and sand pass out through anus as castings. In herd mania, undigested food expelled out forcefully through atrial aperture by sudden contraction of body musculature. And in branchiostoma, undigested food is thrown out directly to outside through anus. So this completes your comparison of food and feeding in all these three subphyla, and you can refer the diagram. Here it is balanoglossus feeding current. You can see the arrows, it is very clear in the diagram. And in branchiostoma, the feeding current, this is the full view of the animal. The food current, it is entering here, goes here, and in the pharynx it is moving up and up. This is for food cord in esophagus, and then the food cord passes through the feces. Food cord, it is digested over here, and the feces are passed out here. In the pharynx, the second diagram is making the water current very clear. Here the water enters, and then after passing through the ventral region, the endostyle, it is moving up and out of the gill slits. These are the gill bars, and there are cilia on them, and there are gill slits through which the water is coming out from pharynx to the atrium. And then this is a transverse section, so you cannot see the anus. The anus can be seen in the first diagram. This pharynx, you can see the pharynx, and it is connected to the digestive tract where the food is digested and the waste material is thrown. So thank you, and look forward to my next lecture in which we will compare these three subphyla further.